Good morning. Welcome back to another class of immunology. We were doing human health and diseases. We started up with this chapter, and in the last class we completed types of immune system types of immunity, right? So in that we spoke about types of immunity. में we spoke about innate immunity and acquired immunity. Acquired immunity के types पढ़े फिर हमने, correct? उसके बाद हमने we also spoke about based on the function the types of immunity, that is AMI and CMI. AMI refers to antibody mediated immunity and CMI refers to cell mediated immunity, right? So that is what we spoke in the last class. In this particular class we have to complete the entire section of immunology so that we are free to start up with the next section, that is diseases, right? So now what we are doing, as you can see on the board, there is a typical structure of an antibody. This ये diagram जो है, that is exactly there in your NCERT textbook. So diagram आपको labeling के लिए आ सकता है, diagram के basis पे questions आ सकते हैं बेटा, ठीक है? So let's get started with the initial part, that is characteristics of the immune system. So immune system के types हमने पढ़ लिए, immune system के components क्या है वो भी अभी हम पढ़ लेंगे, है ना? immune system के components में NCERT में ये दिया हुआ है. immune system का component क्या है? lymphoid organs, right? Specifically lymphoid tissue या फिर lymphoid organs are associated with your immune system. So उसमें हमारा primary lymphoid organ है, that is bone marrow and thymus. Secondary lymphoid organ है tonsils, Peyer's patch, spleen, ये सब secondary lymphoid organs है. Is that very clear? So we'll talk about that also in if time permits in this particular section only. Now we have to understand what are the different special characteristics of immune system. मतलब ऐसा क्या special है immune system में, and what are those salient features of immune system. ठीक है? So the initial part which we have to talk about, the first characteristic feature is something called as specificity. Specificity. Now when I use the term specificity, here I am trying to tell you that your immune system is highly specific to a specific type of antigen. मतलब technically your immune system understands कि कौन सा ऐसा antigen है, कौन सा ऐसा particle है, foreign particle है जो body के लिए fit नहीं है, ठीक है? Are we understanding this? So ऐसा कुछ component है. Let's say for example pollen grain, right? pollen grain की कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है. So some जो जिसको एलर्जी है, so in that particular sense the individual's body immune system will identify this as foreign and it will identify this as toxic, जिसकी वजह से वो internally immune response create करेगा, giving rise to allergic responses. Right? So here when I talk about specificity, I am intending to tell you that acquired immunity is very specific to certain type of microorganisms. Right? I told you इससे पहले भी there was attack of coronaviruses, right? इससे पहले there was MERS, Middle East Respiratory Syndrome, there was SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. ये कोरोना वायरस ऑलरेडी था हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारे disease microflora में already ये virus was included. But now why are we finding it difficult to cater, or why are we finding it difficult to combat this particular new virus? It is a novel virus. क्यों ये नोवेल वायरस है? बिकॉज इसकी जो स्पाइक प्रोटीन्स है, आपको मैंने एक सप्लीमेंट्री वीडियो भेजा था लास्ट क्लास, तो इसकी जो स्पाइक प्रोटीन्स है, ये स्पाइक प्रोटीन्स अलग है, टेक्निकली टोटली अलग है. So your body is trying to find out, your body is taking time to identify that specific amino acid sequence of these spike proteins. So बोलने का मतलब ये है बेटा कि specificity का मतलब क्या है? One particular the bacterial population बोलो या viral population बोलो which are harmful to us, these population is absolutely specific. ये identify कर लेंगे, your immune system will easily identify these microorganisms, right? अगर आप ये देखते हो बेटा कि आपके बॉडी में normal flora भी है, ऐसा नहीं है कि microorganisms है नहीं, right? So you have normal flora in your body, that is you have E. coli, there are several protozoans which are present. Mouth में भी there are several organisms, but in सारे organisms के against your body does not produce antibodies, right? Because they have become a normal flora. Your body has identified it as itself. अब जो next property है, specificity पहले property था, अब जो next property है that is called as discrimination.
ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. सो स्पेसिफिसिटी का एक लाइन में प्रॉपर्टी लिख लेते हैं दैट द इम्यून सिस्टम इज स्पेसिफिक टू microorganisms. When I say microorganisms, it is basically looking out for certain surface proteins of the microorganisms. ठीक है, जो भी हम इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन की बात करते हैं. सो इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाइज प्रोटीन. सो बोलने का मतलब ये है एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन पे जाकर बाइंड होगा. Is that very clear? इसीलिए मैंने आपको ये एक वो वीडियो भेजा था, so that उसमें बहुत क्लियर एनिमेशन दिया था, and for a lot of people it was convincing because it was in Hindi, right? So that is the first property. The second property जो हम बात करेंगे that is discrimination between self and non-self. ठीक है, discrimination between self and non-self. Now please understand, in this particular context, your body's immune system knows what is yours and what is someone else's. ठीक है, what is yours and what is foreign. जैसे सेल्फ, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये प्रॉपर्टी जो है बहुत क्लियरली हमको ट्रांसप्लांट बायोलॉजी में समझ में आता है, राइट? सो ट्रांसप्लांट बायोलॉजी में व्हेन यू एब्सोल्युटली ट्रांसप्लांट अ न्यू ऑर्गन दैट इज ग्राफ्ट, एक ग्राफ्ट जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हो, अगर ग्राफ्ट के सेल्स पे मतलब स्पेसिफिकली इफ दैट पर्सन्स एमएचसी मतलब डब्ल्यूबीसीज के मार्कर्स जो है, एमएचसी जो है अगर अलग है, ठीक है, तो योर बॉडीज इम्यून सिस्टम विल आइडेंटिफाई दैट एज फॉरेन एंड उसके अगेंस्ट मतलब ये ग्राफ्ट है विच इज अल्टीमेटली प्रूवन टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द रेसिपिएंट. ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता इम्यून सिस्टम को कि वो एडवांटेजेस है नॉन एडवांटेजेस है, बट ये फर्क पड़ता है कि वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है. योर बॉडी विल ऑलवेज, योर इम्यून सिस्टम विल ऑलवेज एक्सेप्ट दोज प्रोटीन्स व्हिच आर सेल्फ मेड. ठीक है, इसीलिए अभी जब हम डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड के साथ वी ऑल्सो डू अ टिश्यू मैपिंग, टिश्यू टाइपिंग करते हैं उसको. ठीक है, वी बेसिकली चेक फॉर मार्कर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द WBCs. ठीक है, सो योर बॉडीज इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाइज फॉरेन, आइडेंटिफाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. आई टोल्ड यू, यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है दैट आपके बॉडी में भी देयर आर नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट योर बॉडीज इम्यून सिस्टम डज नॉट आइडेंटिफाई दैट एज फॉरेन. ठीक है, वो हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दीज ऑर्गेनिजम्स, व्हेन अ पर्सन डाइज, दैट इज व्हेन दीज ऑर्गेनिजम्स इन दी, बिकॉज ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिज्म मर गया, उनका रेडी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन चला गया, तो अब these organisms they start, and immune system is also not working, so now these organisms will start attacking. Is that very clear? So discrimination between self and non-self type of antigens, that can be any particular antigen. ठीक है, उसके बाद the next third characteristic is diversity. Now when I say diversity, your immune system is able to identify various types of antigens. Your immune system is able to identify various types of antigens. ये भी कोविड के एग्जांपल्स में हमने बात किया है ना. एक जमाने पहले सार्स का जो वायरस था उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया था. ठीक है, अब वेरी सिनोनिमस टू दैट यू हैव अनदर वायरस. ठीक है, नोवेल कोविड वायरस दैट इज कोविड-19. अब ये भी है, इसकी भी एंटीजेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है. दैट इज व्हाई पीपल आर गेटिंग रिकवर्ड. ठीक है, सो बोलने का मतलब ये है योर बॉडी ट्राइज टू एडजस्ट इटसेल्फ, योर बॉडी ट्राइज टू, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है, डाइवर्सिटी है, योर बॉडीज इम्यून सिस्टम कैन आइडेंटिफाई वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. व्हेन आई से प्रोटीन्स आई एम इंटेंडिंग टू टेल यू एंटीजेंस. वेरी क्लियर ऑन दैट. ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी था. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद मेमोरी. Now this is one of the most important feature of immune system. ठीक है, this is the major feature जो जिसके प्रिंसिपल पे वैक्सीनेशन का जिसके ऊपर वैक्सीनेशन काम कर रहा है. ठीक है, so memory is one characteristic feature of your immune system where your body's immune system identifies the foreign antigen and it keeps the memory of that foreign antigen. ठीक है,
एंड इट कीप्स द मेमोरी ऑफ द फॉरेन एंटीजन सो दैट नेक्स्ट जो भी रिस्पॉन्स होता है दैट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में जो फायरिंग बुलेट्स है दैट इज योर एंटीबॉडीज जो है उसका नंबर ज्यादा हो जाएगा। आई टोल्ड यू इट इज जस्ट लाइक अ वॉर, ठीक है। पहली बार आप दुश्मन को आइडेंटिफाई कर रहे हो, पहली बार आपकी इम्यून सिस्टम दुश्मन को आइडेंटिफाई कर रही है, तो इट हैज टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉजिंग और हाउ इज द व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज जस्ट लाइक अ लॉक एंड की, ठीक है। पहले आपके पास चाबियों का गुच्छा है और आपके पास एक ताला है, तो पहले बार आप क्या करोगे, सारा चाबी एडजस्ट करके देखोगे एंड उसमें से कोई एक चाबी फिट होगा। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हैव टू ओपन दिस सेम डोर, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपको गुच्छे में से वो चाबी पता है और उसी चाबी को आप उसी चाबी से आप ताला खोल सकते हो। तो दैट इज व्हाट आई से, यू हैव अ मेमोरी। उस मतलब यहाँ पे आपका मेमोरी काम कर गया है ना, बिकॉज यू न्यू कि ये वाली चाबी थी और आपने इसको मार्क करके रखा कि ये वाला चाबी है ना, टू ओपन द डोर। सिमिलरली योर बॉडी आल्सो हैज योर इम्यून सिस्टम आल्सो हैज अ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये तो हमने बात कर लिया था लास्ट लेक्चर में ही। अब मेमोरी में व्हेन आई स्पीक अबाउट दिस, देयर इज, आई टोल्ड यू देयर इज प्राइमरी रिस्पांस एंड देयर इज सेकेंडरी रिस्पांस, एंड प्राइमरी रिस्पांस इज स्लोअर, ठीक है। प्राइमरी रिस्पांस में एक इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी काम करता है दैट इज आईजीएम। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बेटा, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में मैंने आपको एंटीबॉडीज दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ाया हुआ है, सो आपको सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। अब बैच 2 के बच्चों को मैंने सर्कुलेशन अभी पढ़ा रहा हूं, तो जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ द टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स फॉर बैच 2, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है बेटा कि इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम जो है, आईजीएम इज पेंटामेरिक इन स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे 5 एंटीजन जैसे लगे होंगे, यू अंडरस्टैंड, दिस इज वन एंटीजन, माय मिस्टेक, दिस इज वन एंटीबॉडी, ठीक है। तो ऐसे 5 एंटीबॉडी लगे होंगे, दैट इज अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, एंड व्हेन यू लुक एट दिस एंटीबॉडी देयर इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। सारा एंटीबॉडी एक वाई शेप प्रोटीन है, तो सारा का सारा एंटीजन पे बाइंड नहीं होगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन है जो वेरिएबल है, which can absolutely change its amino acid sequence as in how the antibody, मतलब it is just like a lock and key mechanism, it is just like an enzyme substrate complex का binding, ठीक है। आपके पास एक सबस्ट्रेट है जो आपका एंटीजन है और ये जैसे काम कर रहा है, एंजाइम के जैसे काम कर रहा है, टू इट हैज टू फिट। अगर अमीनो एसिड सीक्वेंसेस सिमिलर नहीं है ना, अगर पॉकेट नहीं बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, तो क्या हो जाएगा, एंटीजन अपना माय मिस्टेक, एंटीबॉडी जो है अपना सीक्वेंस, अमीनो एसिड सीक्वेंस को चेंज करेगा सच दैट इट कैन फिक्स और इट कैन मेक अप अ नाइस पॉकेट फॉर फिटिंग। किसको फिट करना है, एंटीजन को फिट करना है, तो एंटीबॉडी कैन चेंज। सो प्राइमरी रिस्पांस में बॉडी क्या करती है, प्राइमरी रिस्पांस में देयर इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सो देयर इज 5 पेंटामेरिक स्ट्रक्चर जो है एंटीबॉडी का वो रिलीज हो रहा है, एंड दैट पेंटामेरिक स्ट्रक्चर जो है उसको मतलब टेक्निकली अगर आप एक एंटीबॉडी को देखोगे तो देयर आर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। तो वैसे ही अगर पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है तो देयर आर 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट, सो इट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जैसे चाबी है, ये वाली चाबी फिक्स हुई नहीं, ये वाली हुई, ये भी नहीं, ये वाली हुई, ये भी नहीं, अरे ये वाली हो गई, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सो इनिशियली प्राइमरी रिस्पांस जो है इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर, एंड जब सेकेंडरी रिस्पांस होता है बेटा तो अब 5 में से कोई एक चाबी लग गई, 5 में के सिर्फ एक मोनोमर लग गया। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन योर बॉडी एनकाउंटर्स द सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू स्पेसिफिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम व्हेन योर बॉडी आइडेंटिफाइज द सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, your immune system or your plasma cells produces the only same type of antibody जो identify हो चुका, ठीक है। वो 5 में से कोई एक आइडेंटिफाई चाबी हो गई है, ठीक है। अब your immune system will produce the same type of antibodies again and again in a greater threshold so that the secondary encounter is successfully taken care of, ठीक है। तो that is with respect to the concept of memory, ठीक है। और मेमोरी के लिए काम करने वाले जो स्पेसिफिक मेमोरी सेल्स है, बी मेमोरी सेल्स है, ये बी मेमोरी सेल्स की लाइफ स्पैन जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, 3 to 6 मंथ्स होती है। व्हेन आई टॉक अबाउट लिम्फोसाइट्स की मेजर लाइफ स्पैन इज ऑन एवरेज 10 to 14 days, ठीक है। बट स्पेसिफिकली व्हेन आई से बी लिम्फोसाइट्स या बी मेमोरी सेल्स, स्पेसिफिकली बी मेमोरी सेल्स, इनकी लाइफ स्पैन जो है दे आर कंपैरेटिवली ग्रेटर, ठीक है, 3 to 6 months, which is enhancing your immune system,
ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता बेटा कि आपको कोई टाइप की इन्फेक्शन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एयर में इतने सारे पैथोजेंस हैं, किसी को सर्दी है, किसी को खांसी है। सो इन अदर वर्ड्स योर बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग एवरी डे on that particular point, it is experiencing a attack from the external agent, ठीक है, और every day there is a warfare which is taking place। but कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी दुश्मन बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाता है, ठीक है, कभी कभी दुश्मन बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाता है और आपकी इम्यून सिस्टम को, योर इम्यून सिस्टम ट्राइज टू understand that particular enemy and try to get rid of that particular, try to make your body get rid of that particular antigen, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी ये दो वर्ड्स आपको बार बार इस टॉपिक में आते रहेंगे, ठीक है बेटा। सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब आपको ये बात करना है इम्यून सिस्टम के अंदर यू हैव टू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। The next property which we have to understand, the property इतनी ही है, characteristic इतनी ही है। Now we have to understand the components of immune system। ये जो सेक्शन है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। So I told you components of immune system में हमने क्या बात किया था, we spoke about the lymphoid organs, ठीक है। components of immune system में you have two type of lymphoid organs, one is called as the primary lymphoid organs। when I say lymphoid organs I am specifically talking about lymphocyte। तो ऐसे cells जहां पे lymphocytes एक्सटेंसिव नंबर में हो, दैट इज योर, और या फिर बनते हो या फिर मैच्योर होते हो, दोज आर योर lymphoid organs, ठीक है। सो यू हैव प्राइमरी lymphoid organs and then you have secondary lymphoid organs। primary lymphoid organs, then you have secondary lymphoid organs। now to note here that primary lymphoid organs जो है, these are those organs where the lymphocytes are formed and mature। lymphocytes are formed and they get mature, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये है बोलने का मतलब ये है बेटा कि अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में एग्जांपल्स हम बात करेंगे, दो है, दैट इज योर, यू हैव योर बोन मैरो एंड देन यू हैव योर थाइमस, ठीक है। अब बोन मैरो में मेरे को पता है कि बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स डेवलप हो रहे हैं और थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स डेवलप हो रहे हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन आई यूज द टर्म मैच्योर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, अभी तक उन्होंने फंक्शन नहीं लिया है, दे आर नॉट वेरी एक्टिव। एक्टिविटी उनकी एक्टिविटी जो है दैट विल बी टेकन केयर इन दी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे छोटे छोटे जंक्शंस के जैसे है, आप ये समझ रहे हो कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे कुछ नॉर्मल स्टेशन होते हैं और कुछ जंक्शंस होते हैं। ये जंक्शंस वो है जहां पे बहुत सारे ट्रेन आकर मिलती है, राइट। तो योर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर जस्ट लाइक जंक्शंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। वेयरएज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इज द सोर्स। जंक्शन और सोर्स में फर्क है ना। तो आप जब ये बात करते हो, ट्रेन आपकी एक सोर्स स्टेशन से छुटती है और डेस्टिनेशन स्टेशन पे जाती है, उसके बीच में देयर आर सेवरल स्टेशंस व्हिच कम, करेक्ट। बट तो सारी स्टेशनों पे ट्रेन नहीं रुकती। अगर आप एक्सप्रेस मेल वगैरह से जा रहे हो तो सारे स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती, ट्रेन सिर्फ जंक्शन पे रुकेगी, राइट। बिकॉज ये जंक्शन पे बाकी सब या फिर बाकी सब चीजें होती है, एक्सचेंज, इंजन चेंज हो रही है या फिर साफ सफाई हो रही है, तो जंक्शन पे रुकती है। तो योर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दी स्पेसिफिक जंक्शंस। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ट्रेन फंक्शन कर रही है, राइट। आपने डब्बे चेंज कर रही है या फिर डब्बे साफ हो रही है या फिर इंजन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इट इज टेकिंग अप अ फंक्शन, इट इज एक्टिव प्रोमिनेंटली। बट व्हेन यू टॉक अबाउट योर सोर्स, ठीक है, सोर्स से सिर्फ ट्रेन निकली है। इज दैट वेरी क्लियर? सो इन अदर वर्ड्स व्हेन आई से लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड, बोन मैरो में सारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, बिकॉज़ बोन मैरो इज द ओनली हेमाटोपोएटिक ऑर्गन। बट बोन मैरो में बनकर अगर बोन मैरो में ही मैच्योर हो रहे हैं, सो सच लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अगर बोन मैरो में बनकर the cells migrate with the blood, the cells migrate to the thymus and under the influence of thymosin
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमोसिन अगर T lymphocyte, मतलब technically under the influence of thymosin there is differentiation of these lymphocytes which take place, and please understand, and differentiation के बाद T lymphocyte 4 different types में differentiate होता है, ठीक है, and all of that takes place in the thymus. So बोलने के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि TH सेल फॉर्म कहाँ पे हुआ? थाइमस में. TC सेल फॉर्म कहाँ पे हुआ? थाइमस में. Are we understanding it? That is why we say thymus is your primary lymphoid organ, because cells are formed there. ठीक है, they specifically take function, majorly active function वो कब हो जाएंगे? When they are in the secondary lymphoid organs. Is that very clearly understood, बेटा? ठीक है, so primary lymphoid organ when lymphocytes are formed and they mature. When I say mature, I am technically using the term differentiation. ठीक है, अब जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपके मैच्योरेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एंड बाकी सब फंक्शंस हो रहे हैं. सो इन अदर वर्ड्स व्हेन आई से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, the lymphocytes attain function. Lymphocytes attain function that is they technically get matured, they take function, and finally they die. So secondary lymphoid, primary lymphoid organ में कोई टिश्यू मरता नहीं है, कोई सेल मरता नहीं है. तो secondary lymphoid organ में क्योंकि फंक्शन कर रहा है ना, सेल अगर फंक्शन कर रहा है ना, so cell attains a specific function, that means technically वो mature हो गए. When I use the term mature because यहाँ पे cell properly gets its arms and ammunitions. यहाँ पे arms and ammunitions मतलब the cell now attains or cell now gets certain surface proteins, marker proteins. यहाँ पे जब था cell सिर्फ डिफरेंशिएट हो गया, उसने नया फॉर्म में विकसित हो गया, बट नाउ फंक्शन कब होगा? जब उसके ऊपर सरफेस मार्कर्स प्रेजेंट हो जाएंगे. सो ऑल दैट मार्कर प्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट टेक्स प्लेस इन दी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. मैंने वही आपको बताया, ट्रेन छूट गई है, ट्रेन वहां से छूट गई है, बट ट्रेन की इंजन, ट्रेन के कंपार्टमेंट्स, ये सब कहां पे लगेंगे? इन दी जंक्शंस. दैट इज योर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे बेटा? प्राइमरी एग्जांपल आता है स्प्लीन. यहाँ जगह न थी तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बट आपको पता है मैं ओरली बोल रहा हूं. तो पहला ऑर्गन क्या है? स्प्लीन. ठीक है, दूसरा ऑर्गन क्या है? स्प्लीन. आपको पता है कि स्प्लीन इज द स्टेशन वेयर योर आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज आर डिस्ट्रॉयड. अब स्प्लीन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे 2 मिनट में. ठीक है, उसके बाद आपका आता है टॉन्सिल्स, है ना. टॉन्सिल्स है, फिर लिम्फ नोड्स है. ठीक है, लिम्फ नोड्स के बाद लिम्फ नोड्स जो आपको लिम्फ नोड्स आर नथिंग बट दे आर कलेक्शन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, ऐसे लिम्फोसाइट्स एक जंक्शन फॉर्म करते हैं, कैप्सुलेटेड जंक्शन फॉर्म करते हैं थ्रू आउट योर बॉडी. सो लिम्फ नोड्स आ गया, स्प्लीन आ गया, पेयर्स पैच आ गया, टॉन्सिल्स आ गया. पेयर्स पैच आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन. Tonsils are present in your mouth region because ये ऐसे organs है, ये ऐसे regions है which can encounter any type of antigen. मतलब माउथ है तो माउथ में आप जब भी खाना खाते हो तो several different type of antigens are encountered. Throat infection, सांस लेते हो तभी भी so much of air microflora gets into your system. ठीक है, तो ये जो ऐसे जंक्शंस हैं जहां पे एंटीजेंस आर किल्ड, मतलब टेक्निकली दे अटेन फंक्शन, द लिम्फोसाइट्स अटेन फंक्शन. ठीक है, सो एंटीजेंस आर किल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड बिकॉज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड और लिम्फ में फ्लो होते हैं. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पकड़ कर मैक्रोफेज जो है खा लेगा. ठीक है, और मैक्रोफेज खाने के बाद इट विल प्रेजेंट जो सेल डिब्री है, बैक्टीरियल सेल डिब्री है, इट विल बी प्रेजेंटेड. ठीक है, ओवर द मैक्रोफेज. अब मैंने आपको यही बताया, अगर एक सेल बहुत ज्यादा काम कर रहा है उसको फाइनली मरना है. ठीक है, अगर वही है, अगर इफ यू आर कांस्टेंटली वर्किंग, फ्यूल तो खत्म हो जाएगी, राइट. सो वो सब चीजें होती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. दैट इज व्हाई द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन शोज अ सर्टेन टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन. वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा कि टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज इतना ज्यादा फाइटिंग हो रही है वहां पे, इतना ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, और ऑर्गेनिजम्स की सेल डिब्री व्हिच इज इटसेल्फ एन एंटीजन. ठीक है, बट नाउ दिस एंटीजन इज नॉट एबल टू कॉज डिजीज. व्हेन द ऑर्गेनिज्म वाज
इन इट्स ओन आर्किटेक्चरल फॉर्म, जब वो बैक्टीरिया था तब वो टॉक्सिन बना रहा था, और ये टॉक्सिन की वजह से सेल्स डैमेज हो रहे थे, या बॉडी वाज ट्राइंग टू शो सिम्टम्स। बट अब बैक्टीरिया नहीं बचा है, बैक्टीरिया को खा लिया है, और बैक्टीरिया के सरफेस प्रोटीन्स बचे हुए हैं, और सरफेस प्रोटीन से हमको कुछ नहीं होने वाला। सरफेस प्रोटीन से इनफैक्ट अपनी इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस सरफेस प्रोटीन्स आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है वो कम कर दिया है, और वो कम करके खत्म करने का काम कौन कर रहा है? where does it have to take place? It takes place in the secondary lymphoid organ. ठीक है, so that was the components of immune system. अब स्प्लीन के बारे में एक चीज ये जानना है आपको बेटा, कि स्प्लीन को हम बोलते हैं that it is स्प्लीन में होता है, स्प्लीन का अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो स्प्लीन में हम बोलते हैं कि स्प्लीन इज अ स्मॉल ब्लूइश शेप्ड ऑर्गन। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन द चैप्टर सर्कुलेशन। तो स्प्लीन के बारे में यही है कि स्प्लीन में WBCs डिस्ट्रॉय होते हैं, स्प्लीन में RBCs डिस्ट्रॉय होते हैं, स्पेसिफिकली RBCs। दैट इज व्हाई स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोला है, तो RBC स्पेसिफिकली कहां डिस्ट्रॉय होंगे? इन दी रेड पल्प। दो रीजन होते हैं स्प्लीन में, दैट इज रेड पल्प वेयर RBCs आर डिस्ट्रॉयड, एंड व्हाइट पल्प वेयर WBCs आर स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉयड। बट WBC को क्यों डिस्ट्रॉय करना है ना? WBC तो अच्छे सेल्स है, WBC तो फाइटिंग सेल्स है, तो WBCs को क्यों डिस्ट्रॉय करना है? एंड अगर एक क्वेश्चन था दैट अगर स्प्लीन को निकाल दिया तो स्प्लीन निकालने की वजह से क्या होगा? ल्यूकोसाइटोसिस। When I say leukocytosis, leukocytosis का मतलब क्या है? Increase in the number of WBCs। ठीक है, बट अगर मैं यहां पे बात करूं स्प्लीन को निकाल दिया है तो स्प्लीन W मतलब टेक्निकली WBC मरते कहां पे? WBC फाइट करते करते ही मर जाएंगे when they are actively functioning। ठीक है, but spleen is associated to destroy old WBCs, बूढ़े WBCs जिनका कोई काम नहीं है ना? It is just like a cell also has a life. A cell is formed, a cell attains its adulthood जब वो बहुत ज्यादा फंक्शन करते हैं, जैसे हम पैदा होते हैं और हम जॉब करते हैं at a specific age, वो एज बीत जाती है, उसके बाद हम जॉब भी नहीं करते। सेम इज द कंडीशन विद योर सेल। योर सेल्स आर फॉर्म्ड, सेल्स अटेन अ फंक्शन, एंड द सेल विल हैव टू डाई। ठीक है, सो स्प्लीन इज एसोसिएटेड विद ल्यूकोसाइटोसिस। अच्छी बात नहीं है बेटा, बट यहाँ पे जो ल्यूकोसाइटोसिस, टेक्निकली ल्यूकोसाइटोसिस जो है, अगर इन्फेक्शन की बात हो तो ल्यूकोसाइट्स का इंक्रीज होना इज अ गुड थिंग। ठीक है, बट स्प्लीन निकालने की वजह से, स्प्लीनेक्टोमी की वजह से जो ल्यूकोसाइटोसिस हो रही है, दैट इज यूजलेस, दैट इज वर्थलेस, बिकॉज यहाँ पे कौन से WBCs इंक्रीज हो रहे हैं? जो काम के नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? जो यूजलेस WBC है, जो बूढ़े WBCs है, ओल्ड WBCs है, वी से ओल्ड एंड वोर्न आउट सेल्स, जो फंक्शनलेस है। ठीक है, ऑल दोस फंक्शनलेस सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन दी स्प्लीन। सो अगर स्प्लीन को निकाल दिया तो स्प्लीन को निकालने के बाद क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस होगा। दैट मींस ऑल दैट ओल्ड WBCs which are supposed to be killed in the spleen, they are still in the blood and they are doing nothing। ठीक है, तो अननेसेसरी WBCs का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और आपकी इम्यून सिस्टम जो है, आपकी ही WBCs नाउ, या फ्रेश WBCs will try and kill the old WBCs that might also trigger the reaction of autoimmunity। ठीक है बेटा, so that is what we talk about in the concept of characteristic and concept of immune system। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। व्हाट इज इट? अ स्ट्रक्चर ऑफ अ एंटीबॉडी। नाउ व्हेन आई यूज द टर्म एंटीबॉडी, नाम ही बता रहा है, एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, विच इज एंटी टू अ फॉरेन मटेरियल, है ना? एंटीजन एक बाहर से आने वाला जन है, ठीक है, और एंटीबॉडी उस बाहर से आने वाले जन को अटैक करने वाली बॉडी गार्ड है। ऐसे याद कर लो आप, है ना? तो एंटीबॉडी आर स्पेसिफिकली दोज प्रोटीन्स व्हिच एक्ट अगेंस्ट योर एंटीजेंस। ठीक है, तो टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीजन इज बीइंग माय मिस्टेक, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी इज बीइंग गिवन इन द बोर्ड, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है,
एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन से बनाया हुआ है, तो प्रोटीन डेफिनेटली विल हैव अ एन टर्मिनल एंड अ सी टर्मिनल। तो आप देख रहे हो इट इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। We have done the structure of antibody when we did biomolecules also, because biomolecules में मैंने आपको quaternary structure पढ़ाया है। So this is a quaternary structure where this is the N terminal और ये पूरा का पूरा एक polypeptide है C terminal। Similarly ये एक छोटा polypeptide which has N terminal and it has C terminal, N terminal and C terminal। So बोलने का मतलब ये है that this molecule has two long chains, long peptide। अब मॉलिक्यूल अगर वेट करोगे तो ये लॉन्ग पेप्टाइड इज हेवी, राइट? तो इसी को मैं बोलूंगा हेवी चेन। सिमिलरली देयर आर टू लाइट चेन्स, टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड व्हिच आर रेफर्ड टू एज द लाइट चेन्स। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है? सो दिस इज योर लाइट चेन्स एंड दीज आर योर हेवी चेन्स। So a typical antibody, a Y-shaped antibody, has two heavy chains and two light chains. Hence, an antibody is also referred to as H2L2. H2L2 माने H2L2 refers to two heavy chain and two light chain. ठीक है? Now the heavy chains and light chains are associated, are joined to each other by disulfide linkage. ये तो मेरे को पता है ना? जो टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है वो डाइसल्फाइड लिंकेजेस है, राइट? बट यहाँ पे इफ यू कैन सी यू हैव, अगर एनसीईआरटी में ये भी पूछ सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी में कितने डाइसल्फाइड लिंकेजेस है, सो यू नीड टू काउंट दैट देयर आर टोटल 16 डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, ये दो डाइसल्फाइड लिंकेजेस जो है दे आर स्टेबलाइजिंग द शॉर्ट चेन। ये दो जो ये वाली जो है दैट इज स्टेबलाइजिंग, दैट इज कनेक्टिंग द लॉन्ग चेन एंड शॉर्ट चेन। ये दोनों जो है दे आर स्टेबलाइजिंग द लॉन्ग चेन, ये दोनों स्टेबलाइजिंग द लॉन्ग चेन, ये दोनों स्टेबलाइजिंग द लॉन्ग चेन। These two which are present in the hinge region are connecting the two heavy chains. So यहाँ पे disulfide linkages जो है they are 16 in number according to NCERT। ठीक है, ये आपको याद रखना है, very clear। तो स्टेबलाइजेशन के लिए disulfide linkages है, या also referred to as thiol linkages। ठीक है, now every particular antibody will have certain regions। ठीक है, ये जो पॉकेट रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग रीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट या एंटीजन बाइंडिंग रीजन। ठीक है, सो व्हाट डिफर्स इज, अब एंटीजन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, एंटीजन अलग अलग हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी इज द सेम, बट जो डिफर होता है वो सिर्फ ऊपर का कवर है। ठीक है, व्हेन आई से दिस पर्टिकुलर थिंग, बुक अंदर सारा कोरा पेज है, ठीक है, बट कवर अलग अलग है। सो व्हेन वी से दिस, नो, व्हेन यू गो एंड बाय अ बुक, हम अलग अलग कवर्स के बुक लेते हैं, सो व्हाट इट इज वेरी सिमिलर, अंदर सेम वन लाइनर का बुक्स होंगे, ठीक है, वो एक ही फंक्शन वाला बुक, बट बाहर का कवर अलग अलग होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स के अराउंड जो प्रोटीन्स है दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एंटीजन। तो ये जो पॉकेट है, ये पॉकेट जो बन रहा है, आप ये भी हमको बायोमोलिक्यूल्स की वजह से पता है कि पॉकेट किससे बनता है, ये पॉकेट बनता है फ्रॉम बाय द साइड चेन्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। ठीक है, साइड चेन्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। तो साइड चेन्स ऑफ द अमीनो एसिड, जो ब्रांचिंग चेन्स ऑफ द अमीनो एसिड्स है, आपको वो चेंज करना है। अगर आपने वो चेंज कर दिया तो पॉकेट भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एंटीजन। सो व्हाट चेंजेस, बाकी सब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी पूरा पॉलीपेप्टाइड का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा वो सेम होगा। वेयर द अमीनो एसिड सीक्वेंस माइट चेंज इज दिस रीजन। सो ये जो चेंज होने वाले जो रीजन है जो हमने दिखाया हुआ है, so this is heavy chain, this is light chain, every heavy chain and light chain will have two regions। ठीक है, टू रीजन्स और टू आर्म, उसको हम बोलेंगे, ये दोनों को हम बोलेंगे वेरिएबल रीजन, क्योंकि ये वेरिएबल है, इट्स वेरिएबल आर्म और वेरिएबल रीजन। ठीक है, बिकॉज द अमीनो एसिड सीक्वेंस देयर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एंटीजन। ठीक है, एंड ये जो है, जो सॉलिड कलर्स में हमने बताया और ये स्लैंट लाइंस में बताया, दे आर दी कांस्टेंट रीजन। ठीक है,
कांस्टेंट रीजन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज प्रीटी कांस्टेंट फॉर ऑल द एंटीबॉडीज। आप कोई भी एंटीबॉडी बोल लो, ये कांस्टेंट रीजन जो है सेम होगा, सिर्फ क्या बदलेगा, कवर बदलेगा। तो क्या बदलेगा, ये वेरिएबल रीजन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस बदलेंगे, सो दैट दे कैन फिक्स अप, दे कैन मेक अप अ न्यू पॉकेट फॉर फिटिंग द एंटीबॉडी, माय मिस्टेक, फिटिंग द एंटीजन। ठीक है, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। ठीक है, अब आपको ये याद करना है, प्रोटीन डाइजेशन करनी है इसकी। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, सो जब मैं एक एंटीबॉडी का सॉल्यूशन या एक एंटीबॉडी का सैंपल सस्पेंशन लूंगा, एंड सो आई ड्रॉ इट हियर, सो यू हैव वन एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी को मैंने ट्रीट किया विद पेप्सिन। पेप्सिन इज अ प्रोटीज, करेक्ट, पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा इसको। सो पेप्सिन was seen to break this particular antibody into two major parts या two major fragments। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। दिस इज इंडिकेटिंग योर लाइट चेन, बाकी का जो है हैवी चेन है। ठीक है, सो अब जब मैं इसको पेप्सिन डाइजेशन करवाऊंगा, पेप्सिन डाइजेशन से आई गेट टू फ्रैगमेंट्स। सो व्हाट आई गेट इज, ठीक है, आई गेट टू फ्रैगमेंट्स, टू इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स, एक हैवी फ्रैगमेंट होगा, एक लाइट फ्रैगमेंट होगा। ठीक है, तो that part of the fragment which is only having the constant region is called as the FC fragment। ठीक है, FC part of the antibody। अब यहां पे C stands for crystallizing। ठीक है, C stands for crystallizing। ये crystallizing इसलिए है, बहुत सारे बुक में इसको कांस्टेंट भी बोला, तुम्हारे नोट्स में भी इसको कांस्टेंट लिखा है, बट कांस्टेंट या crystallizing आप लिख सकते हो, बिकॉज़ एक चीज तो ये है दैट दिस इज द कांस्टेंट रीजन ओनली। यहां पे ये दो फ्रैगमेंट्स जो है, मतलब ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, ये दो फ्रैगमेंट्स में वेरिएबल रीजन भी है, कांस्टेंट रीजन भी है, बट यहां पे सिर्फ कांस्टेंट रीजन है। हेंस इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज फ्रैगमेंट कांस्टेंट और फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजिंग। ठीक है, सो क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट। अभी इसको क्रिस्टलाइजेबल क्यों बोला है बेटा, बिकॉज़ जब प्रोटीन डाइजेशन उन्होंने किया, सो दिस वाज द फर्स्ट सेगमेंट टू फॉर्म क्रिस्टल्स, टू फॉर्म अग्लूटिनेशन या फिर टू क्रिस्टलाइज इन अदर वर्ड्स। Whereas these two regions are called as FAB. Here AB stands for antigen binding। समझी गए बेटा, है ना? AB stands for antigen binding। So ये ऐसे दो fragments है। So you get two FAB and one FC fragments। Two FAB मतलब two antigen binding fragments and one constant fragment। ठीक है, so that is with respect to, only you need to understand with respect to your protein या फिर protein digestion of the antibody। ठीक है, now let's concentrate on this region, let's only concentrate on the variable region। ठीक है, अब भूल जाओ ये सब चीजें, भूल जाना मतलब अभी के लिए for that particular matter just exempt that and only concentrate on this region। ठीक है, ये जो है ये एंटीजन है आपका पूरा, और ये जो है व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज दी वेरिएबल रीजन, या इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी, है ना? तो ये पूरा का पूरा एंटीजन है, बट पूरा का पूरा एंटीजन डज नॉट फिट इनटू दिस पॉकेट। एंटीजन का कुछ रीजन पॉकेट पे जाकर फिट हो रहा है। ठीक है, वेरएज पूरा का पूरा एंटीबॉडी जाकर चिपकता नहीं है, सिर्फ एंटीजन का पूरा का पूरा एंटीबॉडी जाकर फिट नहीं होता, सिर्फ एंटीबॉडी का स्पेसिफिक पॉकेट ही जाकर फिट हो रहा है ना? तो when you talk about an exact term, what is this called as or what is this pocket called as? तो जो एंटीजन है, एंटीजन का पार्ट और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये जो यहाँ पे हमने ब्लू कलर में दिखाया दैट इज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड एज एपिटोप। ठीक है, व्हाट इज एपिटोप? एपिटोप इज द
एंटीजेनिक, एपिटोप इज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए डिटर्मिनेंट, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट मतलब एंटीजन का वो पार्ट, दैट पार्ट व्हिच इज डिटरमाइनिंग द बाइंडिंग, और the fragment or part of the antigen which binds with the antibody is called as epitope, ठीक है, इसको भी याद करते हैं। और ये जिधर बाइंड हो रहा है दैट रीजन, ठीक है, जहां पे वो बाइंड हो रहा है ये रीजन को हम बोलेंगे पैराटोप, ठीक है, पैराटोप। इसको याद करेंगे कैसे, पैराटोप एंड एपिटोप क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज पैराटोप? पैराटोप इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट या डिटर्मिनेंट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन द एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज पैराटोप, whereas epitope is the antigenic determinant। तो epitope कहां पे है, epitope किधर है, it is on the antigen, पैराटोप कहां पे है, it is on the antibody। अब इसको याद करना है आपको, ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एपिटोप क्या है, एपिटोप क्या है और पैराटोप क्या है। एपिटोप किसका पार्ट है बेटा, एंटीजन का पार्ट है, पैराटोप किसका पार्ट है, एंटीबॉडी का पार्ट है, ठीक है। अब आपको ये रखना, एपी का मतलब क्या है, ऊपर, और टोपी है ना, एपिटोप रेफर्स टू एंटीजन है बट सिर्फ एंटीजन का टोपी ही जाकर फिट हो रहा है, ठीक है। तो एपिटोप, एंटीजन किसके ऊपर टोपी है, टोपी कौन पहनता है ना, टोपी तो एंटीजन ही पहनेगा। सो एपिटोप इज प्रेजेंट ऑन दी एंटीजन। आई नो आई माइट लुक वेरी फनी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बट दिस इज हाउ यू रिमेंबर। सो एपिटोप इज प्रेजेंट ऑन द एंटीजन। सो व्हाट इज इट, इट इज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। पैरा का मतलब क्या है, नियर, ठीक है, पैराटोप, तो पैरा रेफर्स टू नियर, जो टोपी के नियर है, टोपी के नियर है, दैट इज पैराटोप। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो एपिटोप इज ऑन द एंटीजन, टोपी ऑफ द एंटीजन, एंड पैराटोप इज नियर द टोपी ऑफ द एंटीजन। वेरी क्लियर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट बेटा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखना है। So that ends with our section with respect to your immunoglobulins of antibodies। अब हमको एक छोटा सा सेक्शन करना है with respect to types of antibodies, ठीक है। अब types of antibodies is just a recap of what we did in our last year। in circulation में जो हमने बात किया था वही हम इधर बात करेंगे, तो I don't think so उस पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। वो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो या लिख सकते हो। जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उस चीजें, जिस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है हम उस चीजों पे बात करेंगे। ओके, फटाफट वो खत्म कर लेते हैं, देन वी विल एंड अप आवर सेशन टुडे। वी विल नॉट टेक अप वैक्सीनेशन फॉर नाउ। वैक्सीनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली बात करेंगे। वैक्सीनेशन में आई विल आल्सो हैव टू टेल यू अ स्टोरी ऑन डिस्कवरी, है ना। तो बस वैक्सीनेशन और ट्रांसप्लांट बायोलॉजी ये दो सेक्शन है जो अपन बाद में कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सो एंड टेक्निकली अभी मैंने सोचा तो था कि इम्यूनोलॉजी 2 लेक्चर में खत्म करना, पर 2 लेक्चर में नहीं होता यार, वो पता चलेगा। आओ पधारो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, आहा, also referred to as IgEs। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, सबसे पहला हमारा है IgM। IgM क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं मैं। IgM क्या है बेटा, इट इज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। परसेंटेज याद नहीं रखा तो चलेगा, ठीक है। IgM इज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा IgM इज seen in the primary response। IgM is seen in the primary response. Similarly, IgM cannot cross the placenta।
can't cross the placenta. क्यों क्रॉस नहीं कर पाएगा? Because it is a larger structure, pentameric structure है, इसीलिए it cannot cross the placenta. ठीक है? And also one more important point, it is the first antibody produced in the fetus. मतलब ये खुद fetus produce कर रहा है. fetus की जब circulatory system activate हो जाती है, blood and all cells are being basically formed. This is the first antibody which is being seen. First antibody produced in the fetus. ठीक है बेटा? Okay. So that is with respect to IgM. दूसरा ले लेते हैं IgA, MACD का IgA. IgA is dimer. IgA is dimer. ठीक है? और IgA जो है, IgA also cannot cross the placenta. क्यों? क्योंकि ये डाइमर है. ठीक है? Cannot cross the placenta. IgA कहां पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम, सलाइवा, टीयर्स एक्सेट्रा. ठीक है? स्पेसिफिकली इट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा, कोलेस्ट्रम एंड टीयर्स. ये भी हमको पता है. एंड आल्सो एसोसिएटेड विद, इट इज एन एग्जांपल ऑफ और क्या है? इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ कॉपरो एंटीबॉडी. कॉपरो एंटीबॉडी क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज इट इज ऑल्सो सीन इन दी, इट इज ऑल्सो द ट्रेसेस ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर सीन इन दी फीसस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो कॉपरो एंटीबॉडी, बस इतना ही आपको याद रखना विद रिस्पेक्ट टू IgA. ठीक है? इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, पेंटामेरिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है और डाइमर इंपॉर्टेंट है. ठीक है? इसके बाद आता है दी नेक्स्ट टाइप, दैट इज, आई एम राइटिंग इट हियर, थर्ड टाइप इज IgG. IgG इज द मोस्ट अबंडेंट. कॉमन सेंस है, क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट क्यों है? बिकॉज ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स में आता है. ये स्पेसिफिक चाबी है ना बेटा, है ना? तो इसीलिए इट इज मोस्ट अबंडेंट बिकॉज इट इज सीन इन दी सेकेंडरी रेस्पॉन्स. And also it can cross the placenta because ये मोनोमर है. Can cross the placenta, बाकी सब मोनोमर है. ठीक है? G, D और E सारे मोनोमर्स हैं. So it can cross the placenta. So in other words, exception आता है IgG2. ठीक है? Except IgG2, बाकी सब 4 टाइप्स है. IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. एक्सेप्ट फॉर IgG2, ये उसके सब टाइप्स हैं. एक्सेप्ट फॉर IgG2, ऑल द अदर्स कैन क्रॉस द प्लेसेंटा वेरी इजीली. ठीक है? सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी IgG. आपको याद करना है. द फोर्थ टाइप इज IgD. NCERT IgD के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, बट not to forget the fact that there are 5 types of antibodies. ये पूछेंगे नहीं आपको कि कितने टाइप के एंटीबॉडीज है. 4 टाइप के नहीं, 5 टाइप के एंटीबॉडीज है. D के बारे में I told you that D का फंक्शन इतना greatly known नहीं है, so we will not study D in much detail, but D is generally seen as a surface proteins. It is seen in the surface of B lymphocytes. ठीक है? That is with D. और लास्ट वाला जो है that is IgE. E माने eosinophilia. So IgE is one particular. IgE जो है it is majorly seen in allergy and eosinophilic reactions. मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई एलर्जन एंटर करता है. What is an allergen? Allergen is a type of antigen. My mistake. Allergen, I am repeating myself. Allergen is a type of antigen which is able to create hypersensitivity reaction. What is an antigen? Antigen is something foreign which enters into your body and gives rise to immune reactions. ठीक है? Whereas allergen एक type of antibody है. Allergen एक type of antigen है जो बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस शो करेगा. मतलब एवरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज सेंसिटिव टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन.
ठीक है, एंड दैट एंटीजन इज रेफर्ड टू एज एलर्जेन, ठीक है। सो IgE जो है इट इज सीन इन द केसेस ऑफ एलर्जी, मतलब जब आपके बॉडी में एलर्जेन एंटर करेगा तो ये एलर्जेन को आइडेंटिफाई कौन करेगा, योर इम्यून सिस्टम विल आइडेंटिफाई दैट एंड भरमार ऑफ IgE विल बी रिलीज्ड एंड दिस IgE विल बाइंड टू द एलर्जेन, ठीक है। और ये IgG और एलर्जेन का जो कॉम्प्लेक्स है दैट विल बी फाइनली इंजेस्टेड बाय योर मैक्रोफेजेस, thereby decreasing the signs of allergy, ठीक है। एक प्रिंसिपल सेल आता है दैट इज योर इओसिनोफिल्स। ये भी हमने बात किया था कि इओसिनोफिलिया अगर है इसका मतलब दैट इज एन इंडिकेशन कि उस इंसान को कोई तो चीज की एलर्जी है, कोई तो चीज की एलर्जी है, ठीक है। नाउ सम एलर्जिक रिएक्शंस आर बेसिकली सीन, मतलब इट कैन बी रिएक्शंस आपके बॉडी में दिखते हैं, कभी कभी एलर्जी के रिएक्शंस दिखते नहीं, सो देयर माइट बी इंटरनल एलर्जी आल्सो, ठीक है, जो सिर्फ ब्लड सेल्स में पता चलते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एलर्जी के साइंस दिखते हैं। व्हाट आर द साइंस ऑफ एलर्जी? नाक बहती है, फिर खांसी होती है, देयर इज स्नीजिंग, देयर इज बॉइल्स ऑन दी, देयर इज हाइव्स, देयर इज बॉइल्स, देयर इज एलिवेशन, है ना, मूंगी काटेगी तो कैसे एलिवेशन होती है वैसे स्ट्रक्चर्स, इन्फ्लेमेशन टाइप। सो ऑल दैट एलर्जी, ऑल द साइंस ऑफ द एलर्जी इज ब्रॉट अबाउट बाय द एलर्जेन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सो एलर्जेन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में काम कौन कर रहा है, कौन सा है, IgE। IgE is seen in the case of hypersensitivity, it is also seen in worm or helminth infestation, worm infestations, ठीक है बेटा। तो दैट एंड्स आवर टुडेज क्लास, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द लास्ट सेक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।